Under the guidance of Dr. Pramod Goyal sir, INIC President, and the Dr. Harvinder Kaur ma'am, the coordinator of this event. Now, with the advancement of science and technology and the proliferation of knowledge in the developed and developing countries, inventions and creations must have like if there needs to use anything, one must have a copyright. Or if you have an idea, it's important to have a patent. And if you are going to launch something as a brand, then you must have a trademark. And all these are the cautions to safeguard the human intellect by the help of IPR. And here, IPR, intellectual property rights, refers to the legal rights given to the inventor or creator to protect his invention or creation for a certain period of time. Now, I would like to invite Pramod sir to come and say few lines about this event. Dear student, Madam Harvinder Kaur, Professor Chari, Madam Ekta Karpandra, or our speaker, Sri Satish ji. Students, as you know that today is a very important session which we have planned, that is on intellectual property rights under the aegis of Institutions Innovation Council. You already know that this institute has established this IIC, and under this Innovation Council we have to take the different activity, and you are fortunate that from this semester we, under the guidance of AICT, we have started this cell in our institute, and all of our faculties are associated with that. So this is a very important cell by which we are programming, we are conducting these events. So under this aegis, today we have session on this intellectual property rights, and we have with us Sri Satish ji from Delhi Legal Services, which will deliver the session today. So without taking much time, I invite Satish ji to take the text. Thank you. Hello students. Before adverting to what are IPR and what are its classification, I welcome all the students and the teachers present here to pay due attention to this lecture. First lecture, probably we cannot cover every aspect of the IPR in one session. It's a long process. But in the first session, we'll be covering the basic aspects of the IPR. And it will be an interactive session. It is not that I am master of everything. Probably you will come up with answers where I'll get surprised. So in the today world where Google, social media, everything is available, every student, probably every person, whether literate, illiterate, is somewhere down the line related to IPR and knows some importance or more importance of the IPR in the today's world. My first question before adverting to what are IPR and how it gained importance, why it is needed, and what are the consequences when there is no IPR. Can anyone tell me in basic structure or basic definition that what does intellectual property right means in basic? Not the language of the act or some read over. What is basically meant by intellectual property rights? Any student from here? Just basic, don't shy away, give the answer best known to you. We are not judging you for anything. You can, आप हिंदी में बोले, इंग्लिश में बोले, पंजाबी में बोले, that should not be a criteria of judging your answer right or wrong.
probably a Hindi man can give much better answer, a Punjabi man can give excellent answer, and an English man may not give that answer. So I will not be impressed by your English or the language you conversate. I will be impressed by the content of your knowledge. So anyone who can answer that in basic, what does intellectual property right means? Come up. Raise your hand and answer. For example, मैंने कोई creation करी है। नहीं, आप आंसर तो that you will give an example. What do you understand by intellectual property rights? Sir, intellectual property rights, these are those rights which protect my essence, कि वो कोई और use कर ले। ठीक है, give me the basic. What do we mean by intellect? बताओ। एक माइक दे दो इनको। एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन। आपने भी अच्छा आंसर दिया, बट बेसिक मैंने पूछा, बेसिक दीज आर विद एग्जांपल। हाँ सर, मैं ये कह रहा था हाँ। कि मैंने अपने दिमाग से कुछ बनाया। ओह, वेरी गुड। सर, I am impressed. He has touched the best answer. थैंक यू सर, थैंक यू। अब तो मेरे Intellect दिमाग से- means a generation or a creation of mind. तो सर मैं उसके राइट से प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल। So he has answered it very well. Intellectual means generation or creation of your mind. You come sit in front. आपने भी बताना है? ठीक। So this man and this lady has given the rightful answer. Probably the man has explained the basic nature that any generation of your mind, may that be in form of design, may that be in form of writing, may that be in form of artistic work, may that be in form of generation of a medicine, may that be in form of generation of a seed, may that be in form of any industrial design, falls under the category of IPR. So the basic definition of IPR is protecting the rights of an intellect in generation or manufacturing or creation of an artistic work, a patent work, a design work. अब एक चीज होती है कि what is the basic difference? ये तो इंटेलेक्ट की बात हो गई। सिर्फ इंटेलेक्ट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है? बेसिक है, मेरा थॉट है कि I have thought I will create this design. Can that be protected? No sir. No. Answer is very well no. Why? Because your thoughts cannot be protected. It must come into the papers or it must come into some artistic design. किसी भी चीज में that should come on the papers with research, with distinguishability. That can only be. कोई कहता है मेरे thought पे ये generate हुआ है कि I'll write a book on maths in such a different way. That cannot be protected. First of all, you have to write, and that will become a work. So only the work when it comes down on the paper, जिसको हम कहते हैं कि tangible हो जाता है. Intangible though is in mind. You can't see it. Tangible is on papers. So any tangibility comes on the form of paper, research work, becomes intellectual property rights. अब सबसे बड़ी बात आती है कि आपने देखा होगा intellectual property rights. Can anyone tell me one case, or just a rare case, where you have come across patent or any type of work where this IPR has come into your foray? Any work, कोई डिजाइन कुछ ऐसा आया हो कि जब आपने सुना हो कि IPR आया? First introduction of you to the IPR. सर मेरा नाम रजत है और मैं BFSI का स्टूडेंट हूँ। आप इंट्रोडक्शन मत दो, just tell me the answer. तो मेरा आइडिया ये था कि जो बुलेट होती है ना सर, बुलेट बंदूक वाली, हाँ। तो जब मैंने देखा है जब आर्मी वाले एनकाउंटर में जाते हैं तो एक बुलेट में काम नहीं चलता, हाँ। 2 बुलेट मारनी पड़ती है, उसके बाद बंदा पैरालाइज नहीं होता। सही है, ये तो लोगों को मिसकंसेप्शन है हाँ। कि बुलेट में
कि बंदा मर जाता है। हाँ। तो मेरा आइडिया ये था कि बुलेट में एक्सप्लोजन लगा दो, जिससे एक बुलेट में ही बंदे की टांग पैरालाइज हो जाए और ये पुलिस में भी काम आएगी, जिससे कि एनकाउंटर्स कम होंगे। तो मेरा यही आइडिया था। हाँ। नहीं, ये लेकिन इसका रिलेशन क्या था सेकंड क्वेश्चन पे? that is what he has said. इसका रिलेशन क्या ये क्या हो गया? ये तो आपने ऑफशूट आंसर दे दिया है कि कुछ भी है, कहीं जाके लगेगा तो। हाँ, just tell me that how you were introduced to IPR. यूट्यूब की वीडियो अच्छा, सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन किसी का भी IPR को होता है, remotely related to India or any other part of the world, are the copyrights. Copyrights से मेरा क्या मतलब है? Copyrights सबसे पहला जो भी इंसान किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से कनेक्ट होता है, वो कनेक्ट होता है जब आप कॉपीराइट्स देखते। कॉपीराइट से मतलब होता है आप MCA की, BBA की, MBA की या और भी आप सेकेंडरी एजुकेशन तक होंगे तो एक स्पेसिफाइड बुक होती है किसी के नाम पे, जैसे RD शर्मा मैथ्स की आती थी, देयर मस्ट बी बुक्स। होता है वो सबसे पहले बुक्स से होता है। आपने कितनी बार देखा होगा कितने ऑथर्स बहुत सारी बुक्स लिखते हैं, उस बुक को कोई और पब्लिश नहीं कर सकता अब unless that author gives permission to the publisher that yes you can give this book for manufacturing under my license since I have a copyright। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन किसी भी कॉमन बंदे का जब होता है किसी भी आर्टिस्ट IPR से, वो होता है आपका बुक्स के माध्यम से। तो फर्स्ट कॉपीराइट्स इंट्रोड्यूस्ड वर कॉपीराइट्स एक्ट। फिर उसके बाद आपने जब देखा होगा कि बहुत सारा डेवलपमेंट होने लगा, तब दूसरा आया आपका ट्रेडमार्क एक्ट। ट्रेडमार्क एक्ट आज की करंट सिनेरियो में एवरीवन नोस दैट देयर इज अ ट्रेडमार्क, a logo of Adidas, there is a logo of Nike, probably of thousands of brands who have their specific codification on their product in a special way or in an artistic way, that logos are protected under the IPR Act। वहां पर आ जाता है आपका ट्रेडमार्क एक्ट। थर्ड आता है साइंटिफिक इनोवेशंस। साइंटिफिक इनोवेशंस को भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है। भाई कोई एक बहुत ही रेयर कैंसर की मेडिसिन बना दी, अब वो अगर मैंने बनाई है तो यू मस्ट हैव पुट R&D इनटू इट, यू मस्ट हैव इन्वेस्टेड योर मनी इनटू दिस, यू मस्ट हैव कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज किसी साइंटिस्ट की टीम्स को इंट्रोड्यूस करते हैं दैट वी आर गिविंग यू बजट ऑफ 10,000 crore, यू मैन्युफैक्चर अ वैक्सीन फॉर कैंसर, देन years of R&D goes into it और उस years of R&D के बाद एक मेडिसिन निकलती है जिसके ट्रायल्स होते हैं, ट्रायल्स के बाद वो सक्सेसफुल हो जाती है। तो वो जो साइंटिफिक इनोवेशन होगा उसको पेटेंट एक्ट में प्रोटेक्ट किया जाए। फिर एक आता है कि इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट। इसका जो भी आपको जो मैं आज इंट्रोड्यूस कराऊंगा, आई गिव अ PDF टू अरविंदा मैम और मैं आप वो इनको बच्चों को सर्कुलेट कर देना, बहुत अच्छा मटेरियल है, उससे ही आपको बेसिक नॉलेज पता चलेगी। तो पेटेंट एक्ट आया, उसके बाद फिर आया इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट। अब इंडस्ट्रियल डिजाइन किस लिए आया कि मास प्रोडक्शन किसी फर्नीचर की हो रही है, उसकी कोई स्पेसिफिकेशन है कि वो उस फर्नीचर पे बैठने में आपके कभी भी कमर में दर्द नहीं, वो एक इंडस्ट्रियल डिजाइन हो गया। अब उसको भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है क्योंकि अगर वो डिजाइन मार्केट में आया तो कॉपी इजीली हो सकता है, सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो आया इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट। फिर किसी ने वर्ड सुना ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। कैन एनीवन टेल व्हाट इज ज्योग्राफिकल इंडिकेटर? गूगल से मत देखना भी। कैन एनीवन टेल?
ज्योग्राफिकल इंडिकेटर क्या होता है कि एक किसी प्लेस की, दिस ब्लू वन, व्हाट आर यू डिस्कसिंग विद यू? हाँ जी, टाइम का पूछ रहा था सर। टाइम का सर कब तक चलेगा बस? ऑफ कर देते हैं, ज्यादा हो रही है प्रॉब्लम। लंच का टाइम। अच्छा, भूख लग रही होगी, चल ठीक है। फिर आता है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का बेसिक आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट बनारसी साड़ी। वो कहाँ से रिलेटेड है? बनारस से रिलेटेड है। तो इस टाइप के राइट्स को प्रोटेक्ट करना कि कोई और नाम ना रख ले यूएस में, या इंडिया में कोई नाम ना रख ले कि बनारसी यहाँ से फेमस है, दैट कम्स अंडर ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। मतलब पूरी ज्योग्राफी जो है और उसमें स्पेसिफिक इंडिकेशंस है प्लेसेस का, जगहों का, जहाँ से वो प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट वहीं से बना है, कहाँ से लॉन्ग यूसेज से बना है। कोई और ज्योग्राफिकल इंडिकेटर बता सकता है हिंदुस्तान में? बनारसी साड़ी हो गई, और कहीं से असम की चाय, हाँ यू कैन से दैट। और बताओ, कांजीवरम सुना होगा, पंजाब का दूध। हाँ जी, वन बाय वन। पश्मीना, यस, फ्रॉम कश्मीर, पश्मीना शॉल। हाँ, ये भी, ये सारे ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स। तीसरा जो दो चार हमने एक्ट डिस्कस कर लिए, अब मैं आपको बता देता हूँ जो बेसिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आते हैं। एक तो आ गया आपका पेटेंट एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट हो गया, कॉपीराइट एक्ट हो गया। अब जो पेटेंट एक्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था वो 1970 में। जो सबसे पहला एक्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था, मैं आप लोगों को कहा कि आईपीआर सबसे पहले एक इंसान को कब टच करता है, इज दी कॉपीराइट एक्ट 1957 में इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ, बना। उसके बाद आया ट्रेडमार्क एक्ट। जब ये लोगोज आने लगे, कंपनीज को फील होने लगा कि भाई हमें तो प्रोटेक्ट होना जरूरत है, नहीं तो एडिडास को कोई भी लगा के अपना भी प्रोडक्ट निकाल देगा। सेपरेट, वो 1999 में आया। उसके बाद ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट, वो भी 1999 में आया कि एक इंडिया की या किसी भी कंट्री की एक स्पेसिफिकेशन है, वो वहीं मिलता है, तो उसको भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है कि ताकि उस नाम को कहीं पे भी कोई यूज ना कर पाए। तो वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट आया 99 में। फिर आपका आया द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट, वो आपका 2001 में आया। अब सपोज क्या होता है कि प्लांट्स और सीड इनोवेशन में भी बहुत काम हो रहा है, हाइब्रिड सीड्स बन रहे हैं। सपोज इंडिया के साइंटिस्ट ने एक हाइब्रिड सीड बनाया। अब आपको होगा कि वी ऑल ईट टोमेटोज व्हिच आर रेड इन कलर, बट साइंटिस्ट फ्रॉम बैंगलोर has invented a tomato which is purple in color. उसकी मास प्रोडक्शन चालू होगी। तो उस इनोवेशन को कहां पर, उस सीड को कहां से प्रोटेक्ट करा गया? प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट्स एक्ट 2001 में। फिर आया इंडस्ट्रियल डिजाइन, आपका डिजाइन एक्ट आया कि स्पेसिफिक डिजाइन की चेयर है, स्पेसिफिक डिजाइन की बिल्डिंग है, जो किसी स्पेसिफिक में जाके बहुत सारे फैशन डिजाइनर्स ने उसको कॉपी कर लिया एंड इट वाज थ्रोन इन द मार्केट। तो वो कहां पर प्रोटेक्ट होगा? डिजाइन एक्ट में, बिकॉज एन इंडस्ट्री वाज इन्वॉल्वड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट अपार्ट फ्रॉम मनीष मल्होत्रा हु हैज गिवन हिज इंटेलेक्ट टू इट। तो डिजाइन एक्ट में वो प्रोटेक्ट होगा। एक आया हुआ है, आपने अभी तक बहुत सुना होगा, सेमीकंडक्टर्स। Everyone is running for semiconductor. Probably we are, as India, are 70% of the semiconductor कहाँ से आते हैं हमारे पास? ताइवान, very good. ताइवान से आते हैं 70% of the, probably most of it, because Taiwan has a specialization in that.
and that is protected under Semiconductor Layout Design Act 2000. अब सेमीकंडक्टर कहने ताइवान बना रहे, सेमीकंडक्टर तो यहाँ भी आता है, साइंटिस्ट यहाँ भी है, तो यहाँ पर क्यों नहीं फैक्ट्रियाँ लगा देते? बना लो उसको इतनी इजीली, नहीं, वो प्रोटेक्टेड है. Unless we come out with a semiconductor which does not matches them, तो वो सेमीकंडक्टर डिजाइन एक्ट है, उसमें प्रोटेक्टेड. नहीं तो आज की डेट में आपको पता है इतना गूगल है, everything is available in social media. Product you can buy a Mercedes. Why can't it be manufactured by Maruti in India? Why? Because there is trademark, there is design act, there is patent act, there is something innovative in that which cannot be copied easily. Though can be copied, but cannot be published or manufactured without the permission of the original holder. अब एक आता है पेटेंट एक्ट कि भाई कोई स्पेशल मेडिसिन बना दी. अभी एक मेडिसिन की बात हो रही है, एक मेडिसिन है आपकी शुगर की, डायबिटिक्स की एक मेडिसिन है, उसका पेटेंट अगले 1 साल में खत्म होने वाला है. पेटेंट जो दिया जाता है, कोई साइंटिफिक इनोवेशन या मेडिसिन बनाई गई है, वो आपको 14 साल के लिए दिया जाता है. That 14 years this person who has invented, under his license a company can manufacture it, but none other. अब लेकिन ये ना कि अगर आपको लॉन्गेटिविटी के साथ वो पेटेंट एक्ट दे दिया, तो क्या होगा कि वो ही मोनोपोली हो जाएगी उसी कंपनी की, और किसी को वो दवाइयाँ मिल नहीं पाएगी, वो अपनी दवाइयों को महंगे रखेंगे. तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और उनकी इन्वेस्टमेंट को ध्यान रखते हुए 14 इयर्स का कैप बनाया गया कि 14 इयर्स के बाद this formula of medicine can be supplied to n number of manufacturers, and then it will be not covered under patent. Everyone can manufacture. तो पेटेंट एक्ट came into that. अब एक ही राइट है जो एक ही आईपीआर राइट है जिसको आप एंड तक प्रोटेक्ट कर सकते हो. बाकी सब में एक समय सीमा होती है कि इसके बाद वो राइट खत्म हो जाएगा. जैसे कॉपीराइट होता है, भाई एक बुक है, उसको आप 20 साल तक तो कह सकते हो कि हाँ भाई ये कोई और मैन्युफैक्चर नहीं करेगा, लेकिन जब उसका डिस्ट्रीब्यूशन इतना हो जाएगा तब उसका वो कॉपीराइट एक्ट खत्म हो जाएगा. कॉपीराइट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक ही राइट है. इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, उनके डिफरेंट पेटेंट रजिस्ट्रार बने हुए हैं, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार बने हैं, जहां पर ये रजिस्टर होते हैं जाके. अब अगर एक तो गवर्नमेंट को बहुत सारे टैक्सेस मिलते हैं, अगर एडिडास गली में भी बनने लगे तो हाउ वुड गवर्नमेंट be accountable or be responsible for getting the taxes, provided it will have an adverse effect on the economy of the country and it has an impact on the GDP also of the country. So probably profitability or taxes and adverse effect on the economy. अब क्या होता है कि कितने एम्प्लॉइज डिफरेंट कंपनीज रखती हैं, वो उनको इतना हेवी क्यों पे कर पाती हैं? बिकॉज दे हैव ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, वहां से पैसा आता है तो दे पे हेवी. अगर वो इतना लूज हो जाएगा तो इवन इट विल अफेक्ट द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, इट विल अफेक्ट द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ अ कंट्री. So therefore these acts are very much required. अब सिंपल सी बात है, जितने भी राइट्स हैं, अब मैं कहता हूँ अगर इंडिया में किसी ने कॉपीराइट ले रखा है, ट्रेडमार्क ले रखा है, पेटेंट ले रखा है, तो वो बाहर कैसे प्रोटेक्ट हो जाएगा? Can anyone tell? Is there any organization in the world which protect copyright of other countries also? अब सपोज अगर आपने आर.डी. शर्मा यहाँ बनाई है, आर.डी. शर्मा से तो वो हो ना सब कहीं कभी ना कभी. अब सपोज यहाँ बनाइए, अब जाके कोई यूएस में बेचने लग जाए, तब उसके बाद सबसे पहले जो आई थी ना एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुई थी, बर्न कन्वेंशन. बर्न इज द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड. वहां पर एक कन्वेंशन बनी, वहीं पे इनका हेडक्वार्टर भी है, जिसके आज की डेट में कम से कम 180 कंट्रीज उसकी पार्टनर है उस कन्वेंशन में.
अब वो 180 कंट्रीज को पार्टनर बनने का बर्न कन्वेंशन में, सिंस द हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड इन बर्न, द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड, मोस्ट ऑफ दी आप जितने भी देखोगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या जितने भी बड़े बड़े वो हैं, ऑल आर सिचुएटेड इन स्विट्जरलैंड और डिफरेंट सिटीज ऑफ स्विट्जरलैंड। तो वहां पर बर्न कन्वेंशन बनी हुई है। बर्न कन्वेंशन में 180 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं या सिग्नेटरी हैं उस बर्न कन्वेंशन। अब उसका बर्न कन्वेंशन का फायदा ये होता है कि जितनी भी 180 कंट्रीज है, अगर वो किसी को कॉपीराइट देती है अपनी कंट्री, तो वो 180 कंट्रीज में लागू हो जाता है। अगर इंडिया में किसी स्पेशल मेडिसिन का पेटेंट लिया, जब पेटेंट मिलता है तो फॉरेन कंट्रीज से भी ऑब्जेक्शंस मंगाए जाते हैं। ऐसा नहीं होता इंडिया विल क्रिएट अ पेटेंट और उसको दे देंगे। वो 180 कंट्रीज से उस पेटेंट के ऑब्जेक्शन मंगाए जाएंगे कि ऐसी कोई दवाई आई है, अगर आपने कुछ ऑब्जेक्शन देना है तो आप हमें ऑब्जेक्शन दो इसके, कि हमारे पास यहाँ पहले से है ये मेडिसिन। अलग अलग किस्म के ऑब्जेक्शन, या हमारे यहाँ भी साइंटिस्ट आपसे पहले इन्वेंट कर चुके हैं और उनके पेटेंट हमारे पास मतलब लगे हुए हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्शन जब क्लियर होते हैं तब आपको जाके एक पेटेंट मिलता है मेडिसिन का। अब वो 180 कंट्रीज में कोई भी मैन्युफैक्चरर उस पेटेंट मेडिसिन को नहीं बना पाएगा अनलेस द ओरिजिनल पेटेंटी गिव्स अ लाइसेंस to that country or to the manufacturers of that country. So बर्न कन्वेंशन का फायदा ये हुआ, यू कैन गेट योर आर्टिस्टिक वर्क, डिजाइन वर्क, पेटेंट वर्क, सीड वर्क registered in India, and it will be, after the objections are over, it will be enforced in all the 180 countries. अब 2-4 कंट्रीज हैं जो नहीं हमारे मतलब जो बर्न कन्वेंशन की नहीं है, जैसे सूडान है, इराक है, ईरान है। तो क्या होता है, जो हमारा आर्टिस्टिक वर्क अगर यहाँ पर हमने कुछ भी लिया किसी भी टाइप के आईपीआर में, और अगर वहां पर कोई उसको कॉपी करके कर सकता है, वी कांट डू एनीथिंग। व्हाट एल्स वी कैन डू, दैट वी हैव टू टेक आवर पेटेंट वर्क देयर एंड देन गेट इट रजिस्टर्ड अंडर देयर लॉज। बाकी क्या है कि सारे लॉज कॉमन कंट्रीज है, 180 में सब जगह लागू हो जाएगा, चाहे इंडिया ने दिया हो, यूके ने, यूएस ने, या कहीं से भी। तो तब जाके जब हम वहां के लॉ में रजिस्टर्ड कराएंगे, वहां के आईपीआर लॉज में, तब जाके वहां पर उसको कोई कॉपी नहीं कर पाएगा। अदरवाइज यू कैन नॉट प्रिवेंट योर इकोनॉमिक लॉस इन दैट कंट्री। अब सबसे बड़ी बात आती है कि सबसे पहला कॉपीराइट किस कंट्री में आया होगा? कैन एनीवन गेस? दिस इज ऑल थियोरेटिकल, बट कैन अमेरिका। फर्स्ट कॉपीराइट्स वर जनरेटेड इन और फर्स्ट कॉपीराइट्स वर जनरेटेड इन इटली। सबसे पहला जो कॉपीराइट आया था वो इटली में आया था। वेरी बेसिक क्वेश्चन, कोई मुझसे हमसे पूछता है कि भाई आपके सामने देखो यंग जनरेशन हो, यू मस्ट हैव विजिटेड पब्स, यू मस्ट हैव विजिटेड डिस्कोथेक्स, वहां पर कोई भी गाना चल जाता है। इज इट परमिसिबल टू प्ले एनी सॉन्ग विदाउट अ कॉपीराइट और अ लाइसेंस फ्रॉम द ओरिजिनल कॉपीराइट? नो। जितने भी आप ऑथराइज्ड डीजेस देखोगे या जितने भी आप ऑथराइज्ड पब्स देखोगे, उनमें क्या होता है, जितने भी सॉन्ग्स होते हैं ना, उनके कॉपीराइट्स के लाइसेंस लिए होते हैं, तभी वो रन कर पाते हैं। अब इनका एक क्वेश्चन था, माय फ्रेंड हैज रिटन अ सॉन्ग वेयर आई कैन प्रोटेक्ट इट। यू कैन प्रोबेबली प्रोटेक्ट अंडर द कॉपीराइट एक्ट बिकॉज यू हैव क्रिएटेड एन आर्टिस्टिक वर्क। अब वो कहोगे कि कहाँ प्रोटेक्ट करूं, अब उसको सीडी में कन्वर्ट करोगे सॉन्ग को, ठीक है। अब आपका कॉपीराइट रजिस्ट्रार द्वारका में है, आप कॉपीराइट रजिस्ट्रार के पास उनका एक फॉर्मेट होता है जो आपको उनकी साइट से मिल जाता है। स्पेसिफिकेशंस फिल करो, अपना आर्टिस्टिक वर्क को लिख के दो, सारा सीडी अटैच करो, और उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको पुट करके आप रजिस्ट्रार कॉपीराइट एक्ट के पास जाते हो कि सर ये मेरा आर्टिस्टिक वर्क है, इसको आप प्रिजर्व करने के लिए मुझे आप कॉपीराइट दें, ठीक है ना। तो कॉपीराइट वो जब दे देता है आपको, तो
तब आपका कोई भी कॉपीराइट को अगर कोई कॉपी करेगा उस सॉन्ग को या आपकी बिना परमिशन के प्ले करेगा तो यू कैन फाइल अ केस अगेंस्ट दैट पर्सन। तो आपको देगा वो कौन? कॉपीराइट रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार्स ऑफ कॉपीराइट, रजिस्ट्रार्स ऑफ ट्रेडमार्क भी है, रजिस्ट्रार्स ऑफ पेटेंट भी है, अलग अलग जगह बैठते हैं। तो आप वहां जाके ये एप्लीकेशन दोगे कि मुझे कोई ऐसा कोड दो कि मेरे इस टाइप के सॉन्ग को कोई ना प्ले कर पाए। आपने कितनी बार देखा होगा, कभी कभी कोई प्रोडक्ट का नाम लिखा होता है, उसके ऊपर टी लिखा होता है या आर लिखा होता है। You must have seen it. Yes, sir. Sometimes you see T and sometimes you see R. अब T का मतलब ये जितने भी लोगोस के ऊपर लिखा होता है जनरली, जैसे हल्दीराम के ऊपर R लिखा होगा या कहीं आप T देखोगे या एडिडास के ऊपर लिखे हो। T का मतलब होता है कि ये जो ट्रेडमार्क, जो लोगोस जो होते हैं वो ट्रेडमार्क के अंदर आते हैं। अब जैसे आप जैसे क्या होता है कि आप जैसे शब्द है आपका राम, आप राम को ट्रेडमार्क नहीं कर सकते, लेकिन राम को स्पेशल तरीके से लिखने की कला को आप ट्रेडमार्क कर सकते हो। ठीक है ना? जैसे कपूर एंड सन्स है, आप इसको ट्रेडमार्क नहीं कर सकते, लेकिन अगर स्पेशल तरीके से कपूर एंड सन्स लिखा गया, उस आर्टिस्टिक वर्क को कि इस तरीके से लिखने को आप कॉपी नहीं, कोई भी कॉपी नहीं करेगा, उसको ट्रेडमार्क आप करा सकते हैं। हाँ, वो ब्रांड, वो आर्टिस्टिक वर्क से बनता है ना। अब जैसे रामलाल हलवाई है, रामलाल हलवाई कोई भी रख सकता है, बीकानेरी हलवाई है, हल्दीराम हलवाई है, ये नाम कोई भी रख सकता है, बिकॉज इट्स अ कास्ट, एक प्लेस से आती है। लेकिन अगर वो स्पेशल तरीके से हल्दीराम लिखा हुआ है, उसको आप कॉपी करके नहीं, आप देखोगे कहीं भी ऑथराइज शोरूम पर आर या टी जरूर लिखा हुआ है। आर तब आता है जब सारे ऑब्जेक्शंस रिमूव करके वो रजिस्टर्ड हो जाता है फाइनली, दैट नाउ वंस फॉर ऑल दिस कैन नॉट बी कॉपीड, वंस फॉर ऑल दिस कैन नॉट बी कॉपीड। और टी का मतलब होता है वो पेंडिंग होता है, यू हैव अ राइट बट इट इज स्टिल पेंडिंग रिमूवल ऑफ ऑब्जेक्शन। तो ये डिफरेंस होता है कि आर्टिस्टिक वर्क को अगर वो कॉमन वर्ड्स हैं, जैसे रेड वर्क है, जैसे रेड वर्ड है, रेड वर्ड को आप पेटेंट नहीं, वो सॉरी ट्रेडमार्क या कॉपीराइट नहीं कर सकते, बट रेड बुल को आप कर सकते हो, बिकॉज यू हैव अटैच समथिंग टू इट। आप जितने भी ब्रांड्स देखेंगे या वो आ रहे हैं, सब में कुछ ना कुछ उनका इनोवेशन होता है, तब जाके वो आर्टिस्टिक वर्क में लिखा होता है। जैसे स्ट्रिंग आ रहा है, अभी स्ट्रिंग का एक हाईकोर्ट में केस आया था कि किसी ने और में भी स्ट्रिंग चालू कर दिया था, तो हाईकोर्ट ने उसको स्टे दिया कि आप ये मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते क्योंकि स्ट्रिंग एक ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। तो उसकी वजह से अब देखो इस टाइप के केसेस अब लोगों के जहन में आता है कि मुझे केस फाइल करके होगा क्या। उसमें क्या होता है, जब आप कोर्ट में जाते हो, आप कोर्ट में कहते हो कि जी मैंने देखा एक फैक्ट्री स्ट्रिंग को बना रही है, कोर्ट उसको नोटिस इशू करता है, कोर्ट उसको बुलाता है, वो कहता है दिखाओ आपके पास है क्या स्ट्रिंग से रिलेटेड, वो कहता है जी मैं भी स्ट्रिंग बनाता हूँ। फिर वो कहता है चलो जी अब दोनों अपने ट्रेडमार्क लेके आओ, कोर्ट दोनों को वैलिडेट करता है, देखता है कि पहले वाले का ट्रेडमार्क बिल्कुल सही है, उसने पहले रजिस्टर करा रखा है, तो कोर्ट उसको क्या कहता है दूसरी पार्टी को कि आप ये प्रोडक्ट नहीं बनाओगे। और फिर और क्या दे सकता है वो कि भाई जब से आपकी नॉलेज में आया तब से असली वाली स्ट्रिंग कंपनी को 4 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। नुकसान कैसे हो, जब मार्केट में एक डिजाइन की सारी चीज मिल रही होगी तो पब्लिक कंफ्यूज हो जाती है, कौन इतने ध्यान से देखता है, अगर इसने भी रेड कलर में स्ट्रिंग लिखा हुआ है, उसने भी रेड कलर में स्ट्रिंग लिखा, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। तो कोर्ट कहता है आपकी रॉन्ग सेल्स की वजह से असली वाले स्ट्रिंग को 4 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, आप इसको 4 करोड़ रुपए। ऐसे वो कंपनी बाज आती है कि उसको रोकना पड़ेगा, ये डैमेजेस कॉमन चलते रहेंगे, तो इस तरीके से उसको रोक देती है स्टे। तो कहते हैं ना कि डिजाइन कैसे रुकेंगे, वो इस तरीके से होता है कि सपोज मनीष मल्होत्रा ने कुछ निकाला और वो बहुतों ने देखना चालू कर दिया और उन बहुतों बंदों को आपने पार्टी बना दिया केस में, ये जी फलाना चांदनी चौक का मैन्युफैक्चर भी मैं कर रहा है, साउथ एक्स का भी कर रहा है और जगह का भी कर रहा है, रजौरी गार्डन का भी कर रहा है। तो मनीष मल्होत्रा को बोलेंगे आपको नुकसान क्या हुआ इससे,
वो कहता है जी मेरे को तो 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, आर्टिस्टिक पीस था, इतना महंगा बिकता था, आज कोई लेने नहीं आता मुझसे। तो वो कहते हैं कैसे कि जी मार्केट में देखो ये मैन्युफैक्चर ने इतने सारे बना दिए कॉपी करके। तो मनीष मल्होत्रा का जो लॉस होगा वो बर्डन किया जाएगा उन मैन्युफैक्चरर्स में, और उस बर्डन की वजह से उनको मैन्युफैक्चरिंग बंद करनी पड़ेगी। तो एनी क्वेश्चन मोर, देखो एक सेशन में कंप्लीट नहीं हो सकता, बट प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में पता होगा या आप उसको अपनी लाइफ में सीरियसली लोगे, मजाक में नहीं लोगे, तो यू विल earn at one stage, you will earn 10 times better than the person who is not paying any attention to it. So these knowledge है, knowledge को आप जितना बढ़ाओगे आपको लगता है, लेकिन आपको डिफरेंस कैसे पता लगेगा अगर आप IPR के बारे में 6 महीने तरीके से पढ़ोगे, and when you will interact with a colleague who is non-serious, who does not pay any attention, तब आपको बुद्धि में नॉलेज में पता चलेगा कि तो इसको कुछ भी नहीं आता, और वो आपको फिर हायर नॉलेज में कंपैरिजन में ही नॉलेज पता चलती है ना। जब आप वो होता है ना, जब प्रोफेसर टकराता है तब उसको पता लगता है कि कौन बेटा है। तो इसलिए मोमेंट में आप इसको लाइटली मत लो। वी हैव एनफ मटेरियल, आई हैव एनफ मटेरियल फॉर द IPR, फॉर द जनरल नॉलेज ऑफ द IPR, एंड कीप रीडिंग इट। और आपको जब आप अपने कोर्सेज को कंप्लीट कर लोगे ना, and you will go for interviews and the normal question will come about Design Act, Patent Act, copyright, अगर आप उसमें जाते हो और आप फ्लुएंसी से अगर आंसर दोगे ना, you will not recognize that person who is HR who is taking your interview is so impressed by you that he will probably tell the Tata consultancy, the Reliance consultancy कि इसी को हायर करो, इसको तो एक्स्ट्रा नॉलेज है, and pay him 2 लाख रुपीस, not 50,000 और 20 और 15,000 में जो बंदों का रखते हैं उनको मत रखो, इसको रख लो, इसको 2 लाख रुपए देंगे, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट से हो। डोंट देखो, एक अपने आप को डिमिनिश मत करना। आप किसी भी इंस्टीट्यूट से करो, IP से करो, DC से करो, IIT से करो, इट इज ओनली योर नॉलेज विच विल पे यू। हाँ, थोड़ा कह के आपका स्ट्रगल थोड़ा ज्यादा हो सकता है, बट लेकिन जब आप में नॉलेज होगी ना, यू कैन गिव एनफ आंसर टू द IITians आल्सो एंड दे विल बी आल्सो इम्प्रेस्ड। मेरे बहुत सारे मतलब मेरे कजन्स हैं, दे आर इन स्विट्जरलैंड, दे आर इन पोलैंड, और उन्होंने बहुत नॉर्मल यूनिवर्सिटीज जैसे हमारी यूनिवर्सिटीज है वहां से किया, बट दे आर अर्निंग इन लैक्स। व्हाई? बिकॉज जब उनको कहा गया कि कुछ स्पेसिफिक चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ा तो उनको नौकरी मिल गई और एप्रिशिएबल। नहीं तो MET इज नथिंग। आपको जो भी कॉलेज में पढ़ाया जाता है दैट इज द बेसिक नॉलेज और द सब्जेक्टिव नॉलेज और सम विद प्रैक्टिकल्स। आप अपने आप को डिस्टिंग्विश कैसे करोगे? इट विल बी योर इंटेलेक्ट व्हिच विल डिस्टिंग्विश, नॉट द बुक्स। हाउ यू इंटरप्रेट अ थिंग, मेक योर इंग्लिश स्किल्स बेटर, पे अटेंशन टू व्हाट टीचर्स आर सेइंग, रीड एज मच एज यू कैन रीड, अटेंड करो जितने लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो, यहाँ के बाहर के, अगर टाइम है तो उसको अटेंड करो, बिकॉज डिफरेंट फोरम से आपको डिफरेंट व्यूज मिलेंगे, उस डिफरेंट व्यूज से आपके डिफरेंट परसेप्शन बनेंगे, उस डिफरेंट परसेप्शन से आपको डिफरेंट आंसर्स मिलेंगे, और फिर आप डिस्टिंग्विश करने लग जाओगे। अब जब हम लॉ की फील्ड में होते हैं, अगर हम जजमेंट्स ना पढ़े रेगुलर बेसिस पे, तो कोर्ट में हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। क्यों? उस फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। व्हाई बुक्स आर कॉल्ड द बेस्ट फ्रेंड्स? बिकॉज इट गिव्स यू पावर टू डिस्टिंग्विश। You read different opinions and then you make your opinion. So any question on IPR if one must ask or is willing to ask? Sir, I know in BSc Dynamics department, so our students participate in several hackathons and they provide solutions. So how can they protect their solution? What is the duration if they do so, and what is the amount incurred? What kind of a solution? Any solution. In hackathons are basically organized to provide a solution in a particular duration. So Okay. if they do so successfully, so if they wish to have a patent protected solution, but how Like a can patent is altogether a different thing. मैं आपको बता देता हूँ अंतर क्या होता है। हमें लगता है कि हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, that must be protected.
ठीक है? सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। हाँ, सॉफ्टवेयर सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ, लेकिन जो सॉफ्टवेयर सोल्यूशन आप दे रहे हो वो डोमेन आपके ऑलरेडी सेटल्ड उसका आता है। सपोज आपके जो भी कंप्यूटर्स है, आई एम नॉट अवेयर अबाउट पीसीआई एनसी, बट आई एम गिविंग यू द जनरल आंसर। सपोज आप जिस भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, देयर मस्ट बी अ प्री इंस्टॉल्ड हेवी सॉफ्टवेयर हु इज प्रोबेबली अलाउइंग इट टू वर्क, लाइक माइक्रोसॉफ्ट है, मैकिंटोश है। उसी के डायमेंशन में आप कुछ बनाते हो, जैसे C+ है, C++ और जितने भी आते होंगे। यू आर प्रोवाइडिंग अ सॉल्यूशन विद इन दैट डोमेन दैट कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड। व्हाट कैन बी प्रोटेक्टेड कि मैम एक ऐसा सॉफ्टवेयर लेके आती हैं, विद अ क्लिक ऑफ अ थंब you can get the ITR details, every details of that person within 1 second. That can be protected because that is a copyright with innovation. Merely within the domain you cannot. If you solve an answer from a book, that will not give you any protection. You have to create, you have to invent something different. And उसके लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर चाहिए होगा उसको इंस्टॉल करने के लिए। अब जैसे आप जितने भी देखते होंगे बहुत सारी एप्स डाउनलोड होती है, दैट आर ऑल कॉपीराइट्स। पेटीएम है, पेटीएम इज अ कॉपीराइट, इट्स एन इनोवेशन। आप पेटीएम खुद नहीं बना सकते, ठीक है ना? तो अगर आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर लाते हैं मनी के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर, दैट गिव्स एन एज ओवर द अदर्स और कैन डिस्टिंग्विश, दैट विल बिकम कॉपीराइट। जैसे गवर्नमेंट के कॉपीराइट होते हैं, आधार है, बहुत सारी एप्स हैं, जितनी भी हैं, जितनी गेम्स चल रही हैं, शायद दे आर ऑल कॉपीराइट। आप लूडो गेम खेलते हो तो आप ऐसा थोड़ी आप खुद ही उसको बना के कॉपी कर दोगे। सर जितने यूपीआई है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, सबका पर्पस तो सेम ही है। हाँ, पर्पस सेम है, लेकिन उनमें कुछ डिस्टिंग्विशमेंट है। ऑर्गेनाइजेशन अलग है। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग है, डिस्टिंग्विशमेंट भी है। अब इंटरफेस अलग है, सबका इंटरफेस अलग है। इंटरफेस अलग है। सपोज अब मैं कहूँ कि प्रिंट आउट, तो उस पे भी पेटेंट ले लिया था कि ये एक स्पेसिफिक वो है, पेटेंट प्लस जीआई मिक्सिंग। लेकिन जब हमने उसको कंटेस्ट किया यूएस में कि भाई ये जो प्लांट है नीम का, इट इज अ नेटिव प्लांट ऑफ इंडिया, तो वो पेटेंट हटा दिया यूएस में। यूएस लॉस्ट दैट केस। अब हल्दी का ये कह रहे हैं हल्दी मस्ट बी पेंडिंग, आई विल रीड इट, बट लेकिन जो पेटेंट था नीम का वो हटा दिया उन्होंने। और आप कुछ पूछ रहे थे? तो सर वो सबूत कैसे आएगा कि जैसे कोई दुकान 100 साल पहले चली है, कोई 10 साल पहले चली है, तो जिसने पहले वो करवा ली जिससे उसका नाम आ जाएगा ना? हाँ, तो वो सबूत ही नहीं है 100 साल पहले, वो तो बोलेगा मैं तो नहीं जानता 100 साल पहले। देखो आप देखो इसमें क्या होता है, हमारे जो चीजें डिसाइड होती है ना केसेस में, वो प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज के ऊपर होती है। अब मैं बता दूं, ये वर्ड बड़ा हैवी लग रहा होगा, प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी होता क्या? आपने परम्यूटेशन ऑफ कॉम्बिनेशन तो पढ़ा होगा कभी ना कभी। प्रोबेबिलिटीज क्या होती है? प्रोबेबिलिटीज एक टाइप की आशंका होती है कि ये पहले हो सकता है, ये पहले हो सकता है। अब सपोज अगर प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात कर लेता हूँ, तो आप 100 साल की यूसेज दिखाओगे। आप क्या दिखा सकते हो? देखो जी, मंदिरों में हमारे पास कम से कम 150 साल की चित्रकलाएं हैं और इतने यहाँ पर लोग हैं, उनकी गवाहियाँ होंगी, उनकी एफिडेविट्स जाएंगी। सर जो 10 साल हो सकता है, जो 100 साल पुराना वाला हो उस पे इतना पैसा ना हो जो 10 साल पुराने में, तो खरीद लेगा सबूत ऐसी? अच्छा नहीं, ऐसा नहीं खरीदे जाते। नहीं देखो आप, अच्छा अगर ऐसा होता तो यूएस के पास तो बहुत पैसा है, तो आपको पेटेंट कैसे आ जाता वहां पर? पेटेंट कैसे आ जाता? मतलब आप चलो यूएस की बात मत करो, अच्छा इंडिया की बात करो, इस इंडिया में हो सकता है ऐसा? नहीं होता। देयर मे बी डिफिकल्टी बट इट विल नॉट हैपन। अब एक बार बहुत, चलो मथुरा के पेड़े का अगर मथुरा ही जीआई यूज कर जाएगा, तो वहां तो कितने भक्त हैं आपके, कौन उनको नाराज करेगा? मथुरा में 2 बंदे हो तो नहीं, वो हो सकता है, बिकॉज इट, मैं ज्योग्राफी का क्या है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रिलेट। मथुरा में आप सोइयों पैदा करें इसको मथुरा के पेड़े के नाम से, लेकिन प्रोवाइडेड अगर वाराणसी में कोई कर रहा है, तमिलनाडु में कर रहा है, वो नहीं कर सकता। उस पे ऑब्जेक्ट लगा सकते, तू कैसे देख सकता है इसको? पेड़े देख, लेकिन डिफरेंट नाम से देख, यहाँ के नाम को नहीं यूज करेगा।
फिर उस पे कोई भी केस कर सकता है। किस पे? जैसे कोई और इंडिया यूज कर रहा है हाँ। तो नहीं, वो स्टेट उस पर ऑब्जेक्शन उठाएगा ना कि हमारा इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। अब सपोज क्या होता है, देखो होता क्या है, सपोज अगर मैं कहता हूँ बनारसी साड़ी है, ठीक है, वहाँ के बल्क ऑर्डर आते हैं पूरी फॉरेन कंट्रीज से, वो कहाँ जाते हैं? बनारस के नाम से फेमस है, तो बनारसी साड़ी के जितने भी मैन्युफैक्चर बनारस में बी पार्टिसिपेटेड। Thank you, sir. It's been our